हेलो नमस्ते वेलकम टू डिवाइन इंटरप्रेट्स आई वेलकम यू ऑल एक और पिक अ कार्ड रीडिंग में. दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट पिक अ कार्ड रीडिंग. वी विल जस्ट नो कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं. डू दे लव यू? डज ही और शी लव्स यू और नॉट? आई जस्ट हैव इट्स इट बी वेरी क्विक रीडिंग. बहुत जल्दी जल्दी वील जस्ट चेक आउट the energies and I'll just give you the answer whether it is a sure shot yes or a no. Along with that, we will check the feelings, the romantic feelings of them, some messages from them, and any thing else that you need to concentrate right now at your life. Okay, in your life. तो ये बहुत जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड एंड टेक वट एवर रेजनेट्स. जो नहीं रेजनेट होता है उसको छोड़ दीजिए. ठीक है. सो वी हैव 3 piles over here. First pile is with this nail polish remover. The second pile is with this pink LED nail polish. And the third one is this lipstick of sugar. Okay, so pile number 1, pile number 2 and pile number 3. So you can choose. आपको जो calling होता है आप उसको choose करिए. I'll see you in your reading. Hello, जिन्होंने भी pile number 1 choose किया है, the blue colored nail polish remover, we'll just see कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपको प्यार करते हैं या नहीं. Does he or she loves you or not? ये advice card है, ये आपके लिए है. We'll see at the end. And these two are the cards that will tell me whether they, like वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं. So we have got the Fool card. Very nice. And we have got the Celebration. So what I can see is a short shot में बता देती हूँ कि Fool actually means beginning of something. ठीक है. They want to start something new. So it's a short shot yes. If I see that the Fool card, then it means that yes, वो आपसे प्यार करते हैं. They are inclined towards you. They want to start something new, in fact, with you. Okay. और celebration का कार्ड आया, इसका मतलब ये है it means that celebration should be within you. आपको कोई थर्ड चीज़ नहीं चाहिए in order to celebrate. It also shows friendships. Okay. Associations, बहुत अच्छे associations, okay, with that person. And you don't need the happiness to celebrate yourself from something outside. ठीक है. ठीक है. अपने आप को एक्सेप्ट करिए आप जैसे हैं एंड उसको सेलिब्रेट करिए. मे बी आपके जो इंसान है दे आर लाइक दैट. दे वेरी फ्री स्पिरिटेड एंड वेरी, बिकॉज फूल कार्ड आया है सो दे आर वेरी यंग एंड वेरी फ्री स्पिरिटेड. दैट इज़ वाई ऐसा एनर्जी आया है. सेलिब्रेशन का कार्ड है. सो दे वॉन्ट टू हैव अ गुड टाइम्स विद यू. दे वॉन्ट टू बिगिन समथिंग न्यू. डेफिनेटली दे आर इंक्लाइन टूवर्ड्स यू. दे आर इंटरेस्टेड टू यू. दे आर इंटरेस्टेड इन यू. आप में काफ़ी मतलब इंटरेस्टेड है. इट्स अ शॉर्ट शॉट येस. सो विल जस्ट सी आपका एडवाइस कार्ड क्या है. ओके. सो वर्कहॉलिक में भी कोई है कि आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज वर्कहॉलिक का कार्ड आया है. सो इट ऑल्सो स्टैंड्स फॉर मैनिफेस्टेशंस एट टाइम्स. तो हो सकता है कि आप इस इंसान को मैनिफेस्ट करें तो उसके लिए बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं. ओके. बट मे बी आपको आपको थोड़ा सा रास्ता बदलना है, या फिर मे बी यू हैव टू चेक आउट योर वे. ठीक है. आपको हो सकता है कि यू हैव टू see and work it out in a different way. डेस्टिनेशन मत बदलिए लेकिन रास्ता आप बदल सकते हैं. ठीक है. बिकॉज आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उसके लिए बहुत वर्क हार्ड कर रहे हैं. तो like maybe some patterns you have to change, something you have to change in order to achieve this with this person, the beginning. मे बी हो सकता है कि आप ये बिगिनिंग चाहते हैं इस इंसान के साथ, बट ये इंसान इंटरेस्टेड है एंड दे डेफिनेटली, इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन that yes, they do love you. Now when I'll just shuffle and I'll just see what romantic feelings they have for you. ठीक है. I will not take so much. Let's see what romantic feelings they have for you. Pile number 1, the one I've chosen, the nail remover. What feelings does that person have for you?
So we have let your friends help you. So this is almost synonym to this. Your friends may help you. Let your friends help you. Ask for and accept support from the others. Love yourself first. Very important. You have to love yourself first. Okay? This also calls for this. See? Celebration. Celebrate yourself. Love yourself first. Then your self-respect makes you more romantically attractive to that person. नेक्स्ट वी हैव अनरिक्वेटेड लव. सो हो सकता है कोई कोई है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, यू एक्सपेक्ट दैट न्यू बिगिनिंग एंड दैट्स वाई यू आर मैनिफेस्टिंग अबाउट दिस पर्सन. सो मैनिफेस्टेशंस वर्क होंगे एंड न्यू बिगिनिंग्स डेफिनेटली होंगे. एंड को डिपेंडेंसी इश्यूज़ है. मे बी लाइक आप बहुत डिपेंडेंट है इस इंसान के साथ एंड यू आर लाइक वेरी मच डिपेंडेंट इन द सेंस यू आर लाइक टैंगल्ड विद दिस पर्सन, बंध गए हैं, समथिंग लाइक दैट. सो एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ. सो वो ये को डिपेंडेंसी आपको रेंडर करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा. यू हैव टू हैव दैट हैप्पीनेस विद इन योर सेल्फ. यू हैव टू लव योर सेल्फ फर्स्ट. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू नॉट सपोज टू, योर हैप्पीनेस डज नॉट लाई समवेयर एल्स. किसी और के ऊपर अपना हैप्पीनेस मत खोजिए, अपने ऊपर खोजिए, अपने आप को प्यार करिए. डेफिनेटली थिंग्स विल वर्क आउट. ओके, नेक्स्ट आई हैव सम मैसेज कार्ड्स. आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं. माय गुडनेस. ओके, आई रीड ऑल. आई एम सॉरी, मे बी कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, सो कुछ इश्यूज़ है. सो दे आर टेलिंग यू सॉरी. कैन वी बी फ्रेंड्स? आई डोंट नो वाई बट आई एम जस्ट गेटिंग अ फीलिंग दैट आप लोग फ्रेंड्स है या फिर यू हैव अ फ्रेंड रिलेशनशिप, because ये बहुत friends के cards आ रहे हैं. So I don't know, I'm just getting a feeling maybe you guys have friendship, you are friends, you're exactly what I want and please forgive me. तो कुछ हुआ है past में, that's why they're telling please forgive me, I'm sorry. ये कुछ मेरे handmade cards है about any area of like life where you need to actually focus right now. So we'll just pick out 3 cards, okay, from here. Two, three. Explore your life, take a leap, like learn things. Forgiveness है यहाँ पे. सो कोई आपको बहुत सॉरी बोल रहा है, सॉरी फील कर रहा है, उसको फॉरगिव कर दीजिए. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉरगिव एंड फॉरगेट. मीनवाइल यू ऑल्सो फोकस ऑन योर करियर, और मे बी कोई करियर में भी फोकस करने की कोशिश कर रहा है. ओके, दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. ओके, सो कोई करियर पे भी फोकस कर रहे हैं यहाँ पे. Okay, so that's it. Thank you so much for being with me. Pile number 1. Please like, share and subscribe my reading and I'll see you later. Thank you. Those of you who have chosen this pink nail polish LA18. So let's see your reading. So ये आपका advice cards है. We'll just see it later on. When I was shuffling your card, I was supposed to take one card, लेकिन आपका like 2 cards fell down, so I took both of them. So I'll just see what is the resultant. आप जिनके बारे में सोच रहे हैं क्या वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं. Okay, so you have got the moon card and you have got the tower card. Okay, so the moon card and the tower. So I can see over here is something has been destroyed over here. आप दोनों के बीच कुछ ख़त्म हो चुका है. There's something, it's broken. Okay, it's not there, it's broken, it's destroyed. या फिर ऐसा सिचुएशन आने वाला है. ठीक है. Your fears, your illusions, your insecurities are there. So actually if you ask me कि do they love you or something like that, तो मैं ये कहूँगी कि moon and tower card both actually they signify a no. Okay, it's a no because आप दोनों के बीच में कुछ भी जो भी कुछ था वो ख़त्म हो चुका है. I don't know what is the reason but something has been destroyed over here. ठीक है. So it's, I don't think so out of these 2 cards I don't see that that like do they love you or does that person love you.
इफ़ यू आस्क मी इन टर्म्स ऑफ टैरट इट इज़ अ नो, बट यहाँ पे ना फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है. सो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी इन द सेंस, लाइक मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि इमोशंस नहीं थे यहाँ पे. इमोशंस फैंटेसीज इन्वॉल्व थे, डेफिनेटली थे, बट व्हाट आई कैन सी इज टावर कार्ड शोज कुछ ब्रेक हुआ है, कुछ ख़त्म हुआ है, यू नो. एंड फ्रेंडलीनेस मीन्स लाइक यू नो, ये ऐसा कार्ड है जो डिपिक्ट करता है कि लाइक यू नो टुगेदर रहना या साथ रहना ही इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. मैरिज इज़ नॉट एक्चुअली अ कंपल्शन. ठीक है, एज सुन एज लाइक एज फार एज यू गाइज आर यू नो लाइक यू नो एंड अंडरस्टैंड ईच अनदर, you share a bond, that's more than enough. Uniting with each another does not mean कि like आपको मिलना ही पड़ेगा. This actually card also shows that emotions काफ़ी है, ठीक है, but I don't see like you know like there is some kind of problems. कुछ problem है, हो रहा है, and I think they have walked off from you or something like that. Okay, they don't want to be. So walking off, I can see fears, family issues, something like that. Okay, so I cannot say that they do they love you, like the cards are telling me no, but this friendliness is showing me that they are definitely bonded to you. So dissipating is that. So don't procrastinate about the situation. Procrastinate मत करिए. इसका मतलब ये है कि you know like आप मुँह से तो बोलते हैं बहुत कुछ करना है, लेकिन जब आपके पास मौका होता है आप करते नहीं हैं. तो ये कार्ड वो सिग्निफाई करता है कि आपको करना भी है, आपको खाली बोलना नहीं है, कहना नहीं है, आपको करना भी है. सो मे बी इस चीज़ के लिए ऑल्सो यू हैव टू वर्क. आई गेटिंग इट, लाइक आप बोलते बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं शायद से. दिस इज एडवाइस फॉर यू, द वंस हैव चोजन दिस. तो आपको आप जो सोच रहे हो, आप जो बोल रहे हो ना, आप किया भी करिए, बिकॉज आप बहुत फैंटेसीज़ में जी रहे हो शायद से, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है, बहुत फैंटेसीज़ में जी रहे हैं, illusions में जी रहे हैं. So you have to actually come out of that and do something in practical also to make things work out if you want. But I don't see, like I just see like things have been, you know, like it's not in the control, it's like gone. That does not mean end of the day, because see कुछ destroy हुआ है तो definitely something will be, you know, like coming better for you. Transformations, okay. Now let me see कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या है, रोमांटिक फीलिंग्स. ओके, finances and careers, or maybe they are focused in their work, that is why they're not in terms of, you know, see religious factors are there. So let me just read this first. Finances and career, financial issues are a factor in your love life right now, that's why they have walked off from you. Religious factors are there, so आप दोनों में कुछ differences हो सकते हैं, एज, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, you know, separate like distance, some kind of distance, कुछ issues है, religious factors है, culture different है. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. So कुछ differences हैं, उसकी वजह से they have walked off. बट आपको लगता है कि दिस कुड बी द वन, यू हैव स्ट्रॉन्ग अफिनिटी विद दिस पर्सन. आपको लगता है कि सी दिस एसोसिएशन यहाँ पे दिख रहा है, दिस कुड बी द वन. यू ऑलरेडी मेट योर रोमांटिक पार्टनर. सो मे बी आपको फीलिंग है कि यू नो दैट रोमांटिक फीलिंग्स आप यही है, दिस कुड बी द वन, योर सोलमेट और व्हाटसोएवर. बट अगर है तो आपको यू नो लाइक वर्क करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, यू नो, खाली डे ड्रीम करके नहीं होगा. So getting to know each another, you know, work for this, know each another. As you reveal your innermost selves to each another, your bond deepens. So you understand what is happening. Don't just daydream and, you know, stay in illusion. Playfulness. So like to recapture romance, allow your inner youthful spirit to fun and shine. So, you know, like be playful. Don't be so serious, like, you know, in situations where it demands. तो अगर आपको लगता है कि आपकी सोलमेट है तो आप वर्क करिए इस चीज़ के लिए, ठीक है. उनको भी वर्क करने दीजिए, उनके फाइनेंसेस में, उनके करियर्स में, ठीक है. डिफरेंसेस है तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ दैट दे आर वर्किंग आउट. सो आई कैन सी इमोशनल है इंक्लिनेशन, बट एज ऑफ नाउ दे डोंट वांट टू लव यू और समथिंग लाइक दैट. ओके, एंड लेट मी जस्ट सी व्हाट मैसेजेस दे वांट टू गिव यू. देख लेते हैं उनकी तरफ से क्या मैसेजेस है. लेकिन मैं देख रही हूँ यहाँ पे या तो ब्रेकअप हो चुका है या फिर कुछ ख़त्म हो चुका है आप दोनों के बीच में. सो दैट साइकिल हैज़ ऑलरेडी एंडेड. लेट मी जस्ट सी व्हाट मैसेजेस they want to tell you.
ओके, आई एम अफ्रेड, अगेन आई एम सॉरी, सो मे बी उन्होंने आपका दिल दुखाया, छोड़ के चले गए, सो समथिंग लाइक दैट. आई स्टेयर एट द मून एंड टॉक टू यू, दिस इज़ वेरी वियर्ड. मून का कार्ड आया एंड आई स्टेयर एट द मून एंड टॉक टू यू, सो मे बी they are fantasizing you, they are also dreaming, we are meant to be together, please marry me. So they do want to marry you, but I think there are differences in things. So abhi as of now they don't want to come towards you, इसीलिए शायद से the thing is, do they love you? No, because right now they don't want to do anything with it. We met at the wrong time, so I think they are working on something and they want to make it correct at correct time. So abhi ye waqt nahi hai, so that's why the thing is no. I know we are soulmates, and there's one more card, you're my everything. Okay, now let me just take out some cards from, these are my handmade cards. So they just relate to some of the areas in your life that you need to focus. अभी आपको इस एरिया में फोकस करना है, ठीक है. तो मैं 3 कार्ड निकालूंगी यहाँ से. इन चीज़ों पे आपको फोकस करना, या फिर ये कुछ फैक्टर हो सकते हैं अभी आपकी लाइफ में प्रोमिनेंट. सिंक्रोनिसिटीज़ तो हो सकता है आप नंबर्स देख रहे हैं, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ को इंसिडेंसेस लाइफ में हो रहे हैं, कुछ आप देख रहे हैं, कुछ फील कर रहे हैं एनर्जीज. रीड द साइंस से ये दोनों ही सेम एक्चुअली लाइक मीनिंग पोर्ट्रे करता है. तो उस साइंस को देखिए, मैनिफेस्ट करिए. इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट, वर्क फॉर इट, मेक अ रेजोल्यूशन दैट वट एवर यू आर टेलिंग यू आर डूइंग इट. सो ये सब चीज़ उसी चीज़ को दिखा रहा है. अभी फ़िलहाल द टाइम, आई थिंक यू हैव टू गिव सम टाइम, यू हैव टू वेट for this person, because ये खुद भी बोल रहे हैं that. Okay, so just give time. As of now they don't want to love you at this point of time and be with you, so just try to understand that situation and work on yourself. Okay, do the things that you are just telling. Okay, that's it. So for pile number 2, so please like, share and subscribe my channel. Thank you. I'll see you next in another reading. Thank you. Now for the people who have chosen this lipstick, pile number 3, जिन्होंने ये लिपस्टिक चूज़ करा है, लेट मी सी आपकी क्या रीडिंग है. आई हैव गॉट 2 एडवाइस कार्ड्स, ये आपके लिए है, ये वील सी एट द एंड. सो नाउ लेट मी जस्ट सी, दिस इज़ वेदर आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वेदर वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते. ओके, सो दिट्स एम्परर कार्ड. एम्परर कार्ड एक्चुअली मीन्स येस, ठीक है, दे डू लव यू. एंड इन फैक्ट इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग, या आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, बिकॉज एम्परर का कार्ड आया है. इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग, आप उनके डिवाइन मैस्कुलिन है, ठीक है, ये आपका कार्ड है. तो इट इज़ अ येस कि हाँ डेफिनेटली है, करते हैं प्यार. एंड अभी वो अपने आप पे वर्क कर रहे हैं. दे वॉन्ट टू बी दिस मैस्कुलिन फॉर यू, दे वॉन्ट टू बी द एम्परर फॉर यू, दे वॉन्ट टू बी द लीडर, किंग ऑफ किंग्स, लाइक फॉर यू. तो अभी आई थिंक दे आर वर्किंग, बट डेफिनेटली दे आर एक्चुअली yes, it's a yes. Another card is consciousness. So maybe they are aware of realities, they are coming and they are becoming, they are working on a lot of like काफ़ी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लाइफ को समझ रहे हैं, ठीक है, ट्रुथ को, लाइफ के ट्रुथ को अवेयर हो रहे हैं, ठीक है. एंड वो चाहते हैं कि लाइक वो आपके लिए एम्परर बने, या फिर मे बी यू आर वर्किंग एंड इफ़ यू आर अ मेल, यू आर वर्किंग एंड यू वांट टू बी द एम्परर. सो यू आर बिकमिंग अवेयर ऑफ योर सर्कमस्टांसेस, यू आर वर्किंग ऑन योर सर्कमस्टांसेस. आप अपने रियल वर्ल्ड में एंड अपने कॉन्शियस में आप यू आर बैलेंसिंग योर सेल्फ, ठीक है. आप क्लैरिटी या ट्रुथ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है. सो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, बोथ द कार्ड्स. And let me just see, so it's a yes, very nice card. It's abundance, so definitely like ये advice है आपके लिए कि आपको कोई monetary या finances में like abundance मिलेगा, financial gains वगैरह हो सकते हैं, ठीक है. ये आपके मतलब it's a good thing. And next is perseverance. तो अगर आप इस इंसान इस रिलेशन, इस कनेक्शन के लिए है, तो आपको बिना किसी सेल्फ डाउट के, बिना किसी डाउट के, you have to actually keep on persevering this relationship or this connection, ठीक है. आप लगे रहे हैं, आप बने रहिए इस चीज़ पे, फुल एफर्ट, फुल पॉजिटिविटी के साथ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस रिलेशन और दिस कनेक्शन विल गिव यू अबंडेंस, दे विल गिव यू एवरीथिंग वट एवर यू आर सीकिंग फॉर. सो ये बहुत ही अच्छा रीडिंग है.
नाउ लेट मी जस्ट सी कि आपके आप जिनके बारे में सोच रहे हैं ना उनकी रोमांटिक फीलिंग्स क्या है. आई हैव जस्ट सेड दिस मच बिकॉज यू नो आपकी रीडिंग में इतना कुछ नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल पॉजिटिव एंड काफ़ी इंटेलेक्चुअल इंसान है आप जिनसे डील कर रहे हैं. इंटेलेक्चुअल है, प्रैक्टिकल है, बहुत सोच समझ के यू नो लाइक काम करने वाला इंसान है, लेकिन थोड़े ज़िद्दी भी है, अपने पॉइज में रहते हैं. ठीक है, इतने सारे तो आई विल नॉट टेक. सो आई जस्ट सी व्हाट रोमांटिक फीलिंग्स डू दे हैव फॉर यू, जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करा है. वो अपने हिसाब से चलने वाला इंसान है. ठीक है, आपके जो भी इंसान है. ओके, आई हैव गॉट द कार्ड्स. सी रिलीजियस फैक्टर्स, तो आप में भी डिफरेंसेस हो सकते हैं. दैट इज़ वाई दे आर नोइंग द रियलिटी एंड ट्रुथ्स कि डिफरेंसेस है आप दोनों में. सो दे आर बिकमिंग अवेयर, दे आर एक्सेप्टिंग दैट फैक्ट, दैट रियलिटी. सो आप दोनों में भी डिफरेंसेस हो सकते हैं. रिलीजियस फैक्टर्स, एज डिफरेंस, कास्ट, क्रीड, caste, religion, you know, culture. Your love life is influenced by religious upbringing and spiritual path. Soulmate, okay, so हो सकता है कि आप लोग soulmate है. Yes, this is your soulmate. And wedding, so that is why I saw this abundance card. So wedding हो सकता है कोई जो देख रहे हैं ये, like some people may end up marrying with this person, because you can see the divine masculine is also here. So this situation involves marriage. So हो सकता है किसी किसी की शादी हो सकती है. Now let me just see कि like what messages they want to give. काफ़ी सारे messages हैं. Okay, so I care for you. I need another chance. So कुछ हुआ है मे बी. ठीक है. I love you. See, do they love you? Yes, I said. Okay, so they love you. Everything will be fine. I miss you. I care you. I miss you. सब I love you. Everything is here. I didn't mean to hurt you. So maybe कुछ issues हुआ है इसी वजह से. I think they are telling I need another chance. So कुछ हो सकता है कि कुछ मिफ होके रखा है या फिर कोई ज़िद में अड़ा है, something like that. And I want to make love with you. So ये काफ़ी romantic कार्ड आया है, मैसेज आया है आपके लिए. नाउ दीज आर सम हैंडमेड कार्ड्स फ्रॉम मैंने बनाया है. सो आई जस्ट चूज़ 3 कार्ड्स. यू हैव टू फोकस ऑन दोज फैक्टर्स. सो 1, 2, 3. मे बी दे आर नेचर लवर. ठीक है, दे आर नेचर लवर. दे वॉन्ट टू स्टे इन नेचर, और आर्टिस्ट हो सकते हैं. ठीक है. बिलीव्स, सो मे बी आपको अपने बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग करना है, या फिर मे बी उनके बिलीफ सिस्टम्स के अगेंस्ट हैं आप, समथिंग लाइक दैट. ओके. चिल्ड्रन, सो चिल्ड्रन इज़ इन्वॉल्व. दैट मीन्स हो सकता है कि इन सम ऑफ द केसेस दैट यू नो देर इज़ सम काइंड ऑफ इश्यूज दैट हैव हैपेंड इन देयर चाइल्डहुड. कुछ प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, तो उसको वो रेंडर करना है, उसको हटाना है. दैट इज़ वाई दे आर बिकमिंग अवेयर, सेल्फ अवेयर. तो कुछ बिलीफ सिस्टम्स, कुछ चाइल्डहुड इश्यूज़, या फिर आपके बीच में चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो सकते हैं. इफ़ यू गाइज आर यू नो लाइक अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है या फिर आपके बच्चे हैं, इन दैट केसेस ओनली. ओके, ओनली फॉर सम पार्ट ऑफ द पीपल हु आर लाइक दैट. एंड नेचर लवर हो सकता है. ठीक है. So that was all for pile number 3. Thank you so much for being with me. Please like, share and subscribe the channel, and be there for further readings also. Thank you so much for being over here. Love and light to all. Thank you.